ہندوستان کی ہر خانقاہ میں یہ کام ہوتا چلا رہا ہے، لیکن اس کو روک دیا گیا ہے ظاہری علماؤں کی طرف سے۔ اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں، جتنا عشق رکھتے ہیں، اتنا ہی عشق ہمیں پنجتن پاک سے رکھنا ہوگا، اور اپنے اسلاف کو جو بھول جائے وہ غدار ہے۔ کہ آج میں بڑی غم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جو ہے روحانیت کم ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دور تھا جو غریب النواز کی چوکھٹ پر بادشاہ وقت بھی گھٹنے ٹیکا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس ایسا وقت اس لیے آ چکا ہے کہ ہم روحانیت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ شہزادی کونین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا میلاد کی محفل یہاں منائی گئی ہے۔ 20 جمادی الثانی کو سیدہ بی فاطمہ الزہرا کی ولادت کا دن ہے، اور بڑی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کے ایام کو فراموش کر دیا اور اپنے اپنے ملاؤں اور اپنے اپنے پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اہل بیت کی جو ایام ہیں ان کو منانا چاہیے، نبی کے غم میں غمگین اور نبی کی خوشی میں خوشی ہونے کا یہ میسج ہم تمام کو دیتے ہیں کہ اصل خوشی وہ ہے کہ اپنے نبی کی خوشی میں شریک ہو، اور غم وہ ہے کہ نبی کے غم میں غم منایا جائے۔ آج سیدہ کائنات کی ولادت کی مناسبت سے یہاں محفل سجائی گئی، اور لوگوں میں یہ پیغام دیا گیا کہ یہ کتنا مقدس دن ہے اور کتنا مقدس کام ہے۔ جس دن اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہیں تو اس دن ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے اور اہل بیت سے وفاداری کرنی چاہیے۔ پہلے سے جتنے بھی اولیاء اکرام کی خانقاہیں ہیں، حضور غریب نواز، حضور محبوب الہی، یا ہمارے جدین حضور مومن بادشاہ قادری ہوں، ہندوستان کی ہر خانقاہ میں یہ کام ہوتا چلا رہا ہے، لیکن اس کو روک دیا گیا ہے ظاہری علماؤں کی طرف سے۔ کب کوئی اعلیٰ حضرت کا جشن مناتا ہے، کوئی فلاں حضرت کا مناتا ہے، لیکن اصل بات جو اہل بیت سے محبت رکھنی چاہیے، جن کی محبت ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا اپنی رسالت کی، سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ اہل بیت سے محبت رکھنا قرآن کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے۔ بغیر اہل بیت کی محبت سے آپ لاکھ بھی رسول پاک کا میلاد منائیں یا دوسرے بزرگوں کا میلاد منائیں، کافی نہیں ہے، کیونکہ آل کی محبت ہی ایمان ہے۔ جس کے اندر آل کی محبت ہوگی وہ تو کرتے آ رہے ہیں، ہماری خانقاہوں میں تو سالوں سے چل رہا ہے۔ عام طور پر آج ہو رہا ہے کہ لوگوں میں وہ رجحان پیدا ہوا ہے اس کو جاننے کا، اور جانثاران پنجتن تنظیم جو ہے خصوصی طور پر یہ کام کر رہی ہے کہ اہل بیت کے ایام اور اہل بیت کی فضیلت کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور نبی پاک کی مرضی شامل رہی تو عنقریب لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور جوش پیدا ہوگا، بیداری ہوگی، تو دین اسلام کے صحیح معنی کیا ہیں اور اسلام کے مقاصد کیا ہیں جب لوگوں کی سمجھ میں آئیں گے تو بچہ بچہ اہل بیت کی تعریف کرے گا اور جشن منائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकसद सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों ने जिनका हक अदा करना था वो हक अदा करना भूल गए हम लोग। इस वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पंजतन पाक का जो हक है उनकी शान और उनकी शायाना शान के मुताबिक उनको याद किया जाए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सिर्फ मानना या फिर सहाबा इकराम का नाम लेकर या गौस ख्वाजा का नाम लेकर उनके उर्स मना लेना से मुसलमानियत नहीं होती। अगर वाकई में हम लोग अपने आप को ईमान वाला कहते हैं तो सबसे पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करते हैं, जितना इश्क रखते हैं, उतना ही इश्क हमें पंजतन पाक से रखना होगा। और अपने असलाफ को जो भूल जाए वो गद्दार है। तो अपने असलाफ में अगर सबसे पहला नंबर किसी का आता है तो वो पंजतन पाक का ही आता है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से ये फरमा दिया है कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करो। अगर मवद्दत का मतलब उनको भूल जाना है तो मैं हरगिज भी ये कह सकता। अगर मवद्दत है तो उनके अय्याम को मनाना, उनके अय्याम को याद करना और उन असलाफ की तालीम को उजागर करके उनकी कुर्बानियों को याद करना, वो हमारे लिए दीन का फर्ज अव्वल है। और अगर इन चीज़ों को भूल कर अगर हम गौसे पाक, गरीब नवाज और दूसरे औलिया इकराम के अगर संदलो उर्स मनाते रहेंगे तो वो भी हमसे राजी ना होंगे, क्योंकि औलिया इकराम ने खुद पंजतन पाक के खास अय्याम को मनाने की ताकीद की है और तमाम खानकाहों में ये अय्याम को पहले से ही मनाया जाता है। अब जिस तरीके से हमने इन मस्जिदों के मिंबरों को नाज़वियों के हवाले सुन्नी समझकर दे दिया है, अब वक्त आ चुका है कि हम पंजतनी भाइयों को, सुन्नियों को चाहिए कि इन नाज़वी जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं और ख्वाजा वाले कहते हैं, उसके बावजूद भी अहले बैत के दुश्मन हैं। आज देखिए कि मौला कायनात के सदक़े से हम तकरीबन 5 सालों से मौलूद काबा जो मौला कायनात के नाम से मनाए जा रहे हैं, तो ये मनाने के बाद में आज मस्जिदों में मौला कायनात का मौलूद मनाया जा रहा है। इससे पहले क्यों नहीं मनाते थे? तो इसी वजह से हम ये जिम्मेदारी लेते हैं जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम की जानिब से कि इंशाल्लाह जब तक जान में जान है पंजतन पाक के खास अय्याम, एटलीस्ट जो मौलूद पाक है वो मौलूद पाक को मनाया जाएगा और उन असलाफ की कुर्बानियों को और उनकी तालीम को उजागर किया जाएगा। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हर मस्जिद में, हर मिंबर में, हर गली कूचों में, हर खानकाहों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ पंजतन पाक के तमाम अय्याम को मनाया जाए और अवाम को हकीकी तालीम अता की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ साथ जितने भी खानकाहें जिसमें खादरी अलकसनरानी हैं, खादरी सैलानी हैं, चिश्तिया सिलसिले के हैं, वारसी सिलसिले के हैं, तमाम खानकाह के तमाम औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये कहने की बात नहीं है कि हम अहले बैत को मानते हैं, सिर्फ 2-4 पीर साहब खड़ के हाथ उठा के अगर कह दिए तो वो अहले बैत का काम नहीं है। अगर काम करना है तो डंके की चोट पे अपनी जानों को हथेलियों पे लेकर हम लोगों को काम करना है, क्योंकि अहले बैत के मानने वाले किसी की जान लेते नहीं है। हाँ, अपनी जानों को देने के लिए, जानों का नजराना पेश करने के लिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करा था, जिस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम को उजागर करने के लिए मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करा था, आज वही वक्त आया हुआ है कि नाज़वियों के सामने अगर आप जिक्र अहले बैत कर रहे हैं तो वो आपको शिया राफ़ज़ी का टाइटल लगाकर भाग रहे हैं। अगर वो भी कम पड़ रहा है तो आपको क्या कहते हैं, ये आरएसएस का है, बीजेपी का है कहकर वो भी टालकर भाग रहे हैं। अगर ये भी कम पड़ रहा है तो ये कहेंगे कि ये तो यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों की चाल चल रहा है बोल के इस तरीके की तोहमत लगाते हैं। हमें किसी तोहमतों से डर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हम हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, ता क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। जब तक जान में जान है इंशाअल्लाह अहले बैत की दिफा करते रहेंगे, अहले बैत के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह अहले बैत के जिक्र को बुलंद करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे टैनी रोड के नौजवान हैं, अलग अलग तंजीमों ने, अलग अलग तहरीकों ने इसमें हिस्सा लिया और हर किसी ने ये समझकर आगे बढ़ा कि मेरा पैसा इसमें लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी निजात है। हमने कभी किसी के पास चंदा नहीं लिया, कभी किसी के साथ खैरात नहीं मांगी, क्योंकि ये चंदे वाली टीम नहीं है। ये चंदे वाली टीम जितनी भी है वो मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करती है। हम ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के मानने वाले हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं। हम चंदा नहीं लेते बल्कि मुसलमानों को एक करने की कोशिश करते हैं। अपना खून का आखिरी खतरा भी अगर बेच कर करना पड़ा तो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे नाज़वियों दुश्मनों का ये एक बहुत बड़ा एक चाल है कि अगर हमें रोक नहीं सकते तो हमारे ऊपर तोहमतें लगाते हैं कि ये बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, यहूदियों के एजेंट हैं, शिया हैं, राफ़ज़ी हैं।
करम पंजतन पाक का हम सिर्फ और सिर्फ हुसैनी हैं, ना हम किसी पार्टी से मुंसलिक हैं, ना हम किसी पार्टी से डरते हैं, ना हम किसी की पार्टी के ताउन में काम करते हैं। ये जितना भी काम चल रहा है खालिस सिर्फ और सिर्फ हुसैनियों के सदक़े से चल रहा है, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं तमाम आलम इस्लाम को जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौलूद की मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये रूहानी मंजर है, बेशक रूहानी मंजर है, और ये हमारा मकसद ये है कि आज आलम इस्लाम रसूलुल्लाह के आखिरी खुतबे को भुला दिया है, जो सरकार ने सहाबा इकराम से मुखातिब होकर के कहा था कि ऐ मेरे सहाबियों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक अहले बैत और कुरान। कि जबकि उस वक्त हम नहीं थे, मुल्ला मौलवी मुफ्ती कोई नहीं था, बल्कि सिद्दीक अकबर थे, हजरत उमर फारूक थे, उस्मान गनी जैसे जयीद सहाबा इकराम थे। सहाबा इकराम की सहाबियत खतरे में हो जाती है, गुमराही में हो जाती है अगर पंजतन का दामन अगर छोड़ दे, अगर अहले बैत का दामन अगर छोड़ दे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि मेरे अहले बैत को अगर तुम थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे। तो हम दुनिया को ये बताना है कि हम दुनिया को जो है, जो सोई कौम को ये हम आवाज देना चाहते हैं कि रसूलुल्लाह के उस खुतबे को तुम जो है फिर से अपने कानों को दस्तक दे करके उठाओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजतन पाक और अहले बैत की अहमियत में क्या बताया है। यही रूहानी फैज हमें पाना है कि आज मैं बड़ी गम के साथ कहना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम में जो है रूहानियत कम होने की वजह से जो है लोग गालिब आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो दौर था जो गरीब नवाज की चौखट पर बादशाह वक्त भी घुटने टेका करते थे, लेकिन आज हमारे पास ऐसा वक्त इसलिए आ चुका है कि हम रूहानियत से दो चार हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि पंजतन पाक से जो है मुंसलिक हो जाए, आपकी फजन आपकी जो है रूहानी बरकत से फ्यूज पाते हुए हम अपने इस्लाम को जो है आगे रखते चले और ये सबक हर जगह पहुंचाते चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बीबी फातिमा ज़हरा के विलादत के मौके पर ये हसीन मंजर यहाँ पर देखने को मिला। इस मौके पर मैं कौम की माँ बहनों से एक आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को बीबी फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने की उनको तालीम दें, ताकि देखा जा रहा है कि आज कौम की बच्चियां इतनी खुला के ऊपर, तलाक के ऊपर आकर अपने घरों में बैठी हुई हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी लड़कियों में दीन की तालीम की कमी है। बीबी फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर अगर चलेंगे, उनकी जिंदगी को देखकर हम चलेंगे, तो इंशाअल्लाह उनके घरों में भी बरकतें होगी, उनके निकाह कामयाब होंगे। शुक्रिया।